So in ecosystem chapter, we are going to continue. What is the part completed yesterday in ecosystem? Ecological pyramids. Ecological pyramid में कोई doubt है एनसीईआरटी में? Ecological pyramid के drawbacks last paragraph में दिया है. Ecological pyramids are explaining simple food chains which are not existing in nature. Nature contain actually food webs. Whether food webs are having advantage of food chain, food webs are having more advantages compared to food chain. In food web, what happens? Variety of food available at each trophic level, as well as in food web, biomass increases at each successive trophic level. नहीं है? आप गए थे? Now just one time check the NCERT. Wherever you are having difficulty in ecological pyramid, you can ask. Ecosystem till now completed. Wherever doubt, till now ecosystem में जहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 मिनट्स हम डाउट क्लियर कर लेंगे पहले. सेकेंड बेंच एक बुक दे दीजिए. हाँ देखिए, हाँ पेज नंबर 240 245. 245 second para, second line. They need a constant supply of energy. पेज नंबर 245 पे सेकंड पैरा देखो आप. Further, ecosystems are not exempt from second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorder of the system. Okay, ecosystem में क्या है? Always there is entropy. Ecosystem में क्या है? Entropy is increasing. Correct है? And to supply the energy continuously है ना, because grass is having suppose 100 kilocalories energy. Grasshopper gets how much energy? Only 10 kilocalories. तो 90 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है यहां पर? लॉस हो रही है ना. दैट्स वाई देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी. यहां से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए. there should be continuous supply of energy because major part of energy is lost as heat. सेकेंड पैरा में क्या बोल रहा है? Ecosystem are not exempted from second law of thermodynamics. That means in ecosystem also there is disorder, there is entropy. Whenever energy flowing from one trophic level to next trophic level,
90% of the energy will be lost as heat or entropy. Therefore, there should be continuous supply of energy. Suppose if you remove the sunlight, already 90% लॉस में जा रहे हैं. 90% कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 90% लॉस हो रहा है. और अगर आप सनलाइट भी निकाल देंगे तो टोटल इकोसिस्टम फेल हो जाएगा. वी आर हैविंग ओनली 10% एफिशिएंसी. कितने परसेंट एफिशिएंसी है? 10% एफिशिएंसी है. नोबडी इज 100% एफिशिएंट. 90% हीट तो लॉस हो रही है एवरी टाइम फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. और बताइए कहां पर है डाउट? सैप्रोट्रॉफ्स. सैप्रोट्रॉफ्स बोल के बोल रहे हैं या डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं. पेज नंबर 250 पे देखिए. However, there are certain limitation of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level. Ecological pyramid cannot explain belonging of one organism to more than one trophic level. Belonging of one species to more than one trophic level. More than one. Most of the time, one species will come in more than one trophic level. Okay? So how many organisms are having fixed trophic level? Producers are having fixed trophic level. Fixed trophic level. Remaining all are moving from one trophic level to next trophic level. Producer का trophic level fix होता है and then herbivores का trophic level fix होता है. Herbivores pure vegetarian जो होते हैं, ठीक है. ह्यूमंस बायोलॉजिकली नॉट वेजिटेरियंस. ओके, तो ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल बदलते रहेगा. T3, T4, T5 क्या भी जा सकते हैं. Ecological pyramid assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. Ecological pyramid explains simple food chain, है ना. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. यूनिडायरेक्शनल फ्लो. ग्रास के बाद ग्रास हॉपर ही आना, ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग ही आना, फ्रॉग के बाद स्नेक ही आना, स्नेक के बाद ईगल ही आना. दिस इज व्हाट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. एंड this kind of simple food chain never exists in nature. In nature, actually, what happens? Food web is present. General simple food chains are not existing. Isolated food chains are not existing in nature. Nature is having food web. And ecological pyramid cannot accommodate food web. फूड वेब के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता इकोलॉजिकल पिरामिड. क्या एक्सप्लेन करता है? फूड चेन के बारे में एक्सप्लेन करता है. ठीक है. अब मुझे लगता है ये पैराग्राफ से क्वेश्चन आने वाले हैं अब, क्योंकि अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा है नीट में, व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर बायोमास इन फॉरेस्ट, इन एक्वाटिक सिस्टम, ऐसा पूछा. इन्वर्टेड, अपराइट, ये कभी भी नहीं पूछा. लिमिटेशंस. Ecological pyramids explain simple food chain. They cannot explain food web. And moreover, saprophytes. Saprophyte या sporophyte? Saprophyte. Saprophyte मतलब decomposers. Saprophytes decomposers. Don't call स्पोरोफाइट्स. स्पोरोफाइट अलग होता है, ये सैप्रोफाइट्स है. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a very important role in ecosystem. Saprophytes are playing very important role in ecosystem. What role they are playing?
Decomposers are playing very important role, that is mineral recycling कर रहे हैं. सैप्रोफाइट क्या कर रहे हैं? मिनरल रिसाइकलिंग कर रहे हैं. बट डिकम्पोजर्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड बोल के बताया है. अभी हम जाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने. इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाँ, पेज नंबर 245. हाँ, from bottom second para, last line. Some common herbivores are insects, birds, mammal in terrestrial ecosystem and mollusk in aquatic ecosystem. क्या डाउट है इसमें? Even mollusk are also considered as herbivores बोल के बोल रहा है. mollusk का जो होता है ना, ऑयस्टर्स, ओके, ऑयस्टर्स जो हैं वो भी उसमें हर्बियोर्स मिल जाते हैं. सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर हर्बियोर्स. Insects are herbivore, honeybees are herbivores, like that. Birds are herbivores, not all birds. ऐसा बोल रहा हूँ. Some common herbivores are insect, birds and mammal. Even some mammals are herbivores, just like cows, buffaloes. Mollusk also herbivores. Oysters हैं, garden snail है. हाँ, एन्यूमरेशन का मतलब है काउंटिंग करना. काउंटिंग, फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज कंपोजिशन. स्पीशीज कंपोजिशन बोलेंगे उसको. एनी अदर क्वेश्चन? इकोसिस्टम क्लियर है अब यहां तक एनसीईआरटी में? कोई डाउट नहीं है? नो डाउट लेफ्ट. चलो, अब जो है हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? सक्सेशन क्या होगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट. Succession is nothing but replacement of one community by another community. Succession is nothing but replacement of one community by another community. It's a rule of nature. Nobody is permanent here, है ना? Nobody is permanent. Everyone has to be replaced by another community. Replacement of one community by another community. याद रखो, पूरा कम्युनिटी रिप्लेस हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट होल कम्युनिटी. एट प्रेजेंट जो आपको दिख रहा है आपके अतराफ में, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, these are all part of our community. Group of different population is called community. कुछ 100 years के बाद ये पूरा कम्युनिटी रिप्लेस होके दूसरा कम्युनिटी आएगा. That is called succession. Succession is nothing but replacement of one community by another community. And one more thing, succession and evolution are parallel process. Succession and evolution are parallel process. है. दोनों भी चलते हैं नेचर में. Succession is also going on, evolution is also going on parallel, simultaneous, same time चल रहा है. And succession is orderly, sequential, predictable process. Succession is orderly
ऑर्डरली मतलब कौन से ऑर्डर में हो रहा है सीक्वेंस, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, स्टेजेस. इफ स्टेजेस आर वेरी क्लियर, that is called orderly. If you know what happened next, if you know what happened next after next 10 years, that is called orderly, sequential, predictable. बोल सकते हैं आप आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, predictable process. Whereas evolution is a random directionless process. Evolution is रैंडम डायरेक्शनलेस प्रोसेस है, जबकि सक्सेशन क्या है, ऑर्डरली सीक्वेंशियल प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है. अब ये जो भी जनरेशन है हमारा, ये जनरेशन 100 ईयर के बाद खत्म होगा और नेक्स्ट जनरेशन आएगा, एंड दैट जनरेशन विल बी मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजी, इन एवरीथिंग, एंड दे विल बी मोर इंटेलिजेंट. ये प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और ऑर्डरली प्रोसेस चल रहा है. एंड सक्सेशन कैन बी ऑकरिंग बाय टू मेथड, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. दो मेथड से सक्सेशन हो रहा है. प्राइमरी सक्सेशन क्या है बताओ, प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा? प्राइमरी सक्सेशन, primary succession means succession occurring on a totally barren area, occurring on a totally barren area, totally barren area for the first time, for the first time. टोटली बैरन एरिया होना चाहिए, मतलब एक ऐसा एरिया रहना चाहिए जहां पे कोई भी ना रहते हो, अभी कोई भी नहीं रहते और पास्ट में भी कोई नहीं रहते थे, पास्ट में भी कोई नहीं रहते थे. ऐसा एरिया, टोटली बैरन एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन. इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो, वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा ये. some centuries required for the formation of soil. पहले सॉइल बनेगी, वहां पर कोई भी नहीं रहते ना, कोई भी नहीं रहते मतलब प्लांट्स भी नहीं, एनिमल भी नहीं, ह्यूमन भी नहीं, इंसेक्ट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं. टोटली फर्स्ट टाइम हो रहा है सक्सेशन. दिस इज प्राइमरी सक्सेशन. वेरी स्लो बिकॉज सॉइल फॉर्मेशन, soil formation requires many centuries. लग जाते हैं, centuries. समझे? आसान नहीं है सॉइल बनना. पहले सॉइल बनेगी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल बनेगा, फिर उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो होंगे. इट टेक्स centuries. And where this primary succession occur totally first time. इमेजिन करना जरा मुश्किल है ना, टोटली बैरन एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम. इसका ना एग्जांपल है रिसेंटली कूल्ड लावा. रिसेंटली कूल्ड लावा मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे लावा था, मोल्टन मास ऑफ मेटल था. सिंस फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स से वो एरिया जो है कंप्लीटली लावा में था. अब तक ऐसे भी प्लेसेस हैं. एंड वहां पे अब रिसेंटली लावा कूल हुआ, और कूल होने के बाद उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट बना फर्स्ट टाइम. देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन. रिसेंटली कूल लावा, न्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेस, न्यूली एक्सपोज रॉक सरफेस. रॉक्स पहले जमीन के अंदर हैं, उसको बाहर निकाले, और रॉक्स के ऊपर लाइकेंस ग्रो हुए या कुछ और प्लांट्स ग्रो हो गए. न्यूली एक्सपोज रॉक सरफेस. न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड बनाए. एक इंजीनियर पॉन्ड बनाया और वो पॉन्ड के अंदर जो है अलगे ग्रो हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन.
So this is all primary succession. It is going to be very very slow process. Next है secondary succession. Secondary succession कैसे होगा देखो. Secondary succession means succession taking place on a deforested area. Taking place on a deforested area. Deforested area, burnt area है, मतलब पहले वहां पर कुछ था और दूसरी बार फिर एक बार शुरू हो रहा है. डिफॉरेस्टेड मतलब फॉरेस्ट था, कट कर दिए फॉरेस्ट को, फिर एक बार सक्सेशन हो रहा है. इफ सक्सेशन टेकिंग प्लेस ऑन ए डिफॉरेस्टेड एरिया देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. बर्न्ट एरिया में भी हो सकता है सेकेंडरी सक्सेशन. इट्स फास्ट, कंपैरेटिवली फास्टर होता है. because soil is available पहले से है soil, so it is going to be fast. ठीक है, यही secondary succession. Anyhow, both the succession, primary succession, secondary succession occur in the same sequential orderly manner. So succession again classified into two types. One is hierarch succession, one is called hierarch succession. Based on the place, succession again habitat, place के ऊपर succession के दो type हैं, hierarch succession, hierarch succession. Hierarch succession takes place in water, body, in water. Okay, and hierarch succession takes place on dry lands. Hierarch succession is occurring. ठीक है, hierarch succession वाटर में हो रहा है, hierarch succession जो है ड्राई लैंड्स पे हो रहा है, जमीन पे हो रहा है hierarch succession. ठीक है, अभी हम देखेंगे hierarch succession कैसे हो रहा है. Where it occur? Water. Where hierarch succession? Dry lands. And remember, both hierarch and hierarch succession climax community will be mesic. याद रखो, चाहे hierarch succession करो या hierarch succession करो, लेकिन फाइनल में जो भी कम्युनिटी बनेगी and that community will be mesic. What is meant by mesic? Mesic का मतलब है moderate amount of water. Neither excess water nor less water. Moderate amount of water में हो जाएगा climax community. फाइनल में जो climax बनेगा, climax community will be same in both hierarch and hierarch succession. That is mesic. So hierarch succession मतलब ये fully water में हो रहा है और कुछ 100 ईयर से 1000 ईयर के बाद ये वाटर बॉडी पूरा क्या बन जाएगी? mesic, moderate amount of water. hierarch succession also ड्राई लैंड्स पे हो रहा है, लेकिन फाइनल में जो बनेगा mesic बनेगा. फाइनल कम्युनिटी इज ऑलवेज mesic. Now let's go for hierarch succession. hierarch succession देखेंगे कैसे हो रहा है. So hierarch succession
hierarch succession. It takes place in water body, as I told. Suppose there is a water body. If you visit some lake or river or pond, अगर कुछ विजिट करें, हम एक वाटर बॉडी विजिट करें, so the water body will be in phytoplankton stage. First water body will be in phytoplankton stage. जैसे एक रिवर की बर्थ होती है, रिसेंटली फॉर्म्ड रिवर, उसमें सबसे पहला स्टेज होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. रिवर की बर्थ होती है, रिवर की एज होती है, और रिवर की डेथ भी होती है, याद रखो. बट हम अपनी लाइफ में नहीं देख सकते. एक रिवर की बर्थ डेथ दोनों नहीं देख सकते हम, बिकॉज हमारी लाइफ है ना बहुत ही शॉर्ट है, और ये सक्सेशन चलता है सेवेरल 100 to 1000 ईयर्स बोल के. सेवेरल 100 to 1000 ईयर्स. एवरी वाटर बॉडी फर्स्ट इनिशियल स्टेज इज फाइटोप्लैंक्टन. एकदम क्लीन वाटर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर क्लीन वाटर, और उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो होंगे, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक algae grows. That is called phytoplankton stage. And after phytoplankton stage, the next stage start. The second stage. Second stage क्या है देखो. Second stage है, this is called submerged stage. क्या बोले? Submerged stage. You can see some plants are growing at the bottom of the water body, है ना? वाटर बॉडी के बॉटम में ग्रो हो रहे हैं. That is submerged. Submerged stage. And then third stage. What is the third stage? Third stage कुछ प्लांट सबमर्ज रहेंगे और कुछ प्लांट वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे. वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे. दिस इज कॉल्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज. सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग. Submerged free floating stage. Some plants are submerged and some plants are floating. This is called submerged free floating stage. And next fourth stage. Fourth stage है no, at this time क्या हुआ ना, थोड़ा सा वाटर लेवल कम हो गया है. बाई दिस टाइम यहाँ पे आते आते वाटर लेवल कम हो गया जरा. द प्लांट्स आर लाइक दिस. प्लांट्स आर ग्रोइंग. दिस स्टेज इज कॉल्ड रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज बोले इसको. रीड स्वैम्प स्टेज. और रीड स्वैम्प स्टेज के बाद फिफ्थ स्टेज आ रहा है. यहां पर अब तो वाटर बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर है वाटर. प्लांट्स आर ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड मार्श मीडो. मार्श मीडो स्टेज बोले इसको. मार्श मीडो स्टेज. और मार्श मीडो स्टेज के बाद फाइनल मिलेगा आपको 6th नंबर पे मीसोफाइटिक फॉरेस्ट. यू विल गेट one complete forest. Complete forest. Imagine how a forest looks. So many trees. वो फाइनल में बन जाएगा. यहां पर एक स्क्रब स्टेज भी आएगा. ये 7 नंबर पे लिखो मीसोफाइटिक फॉरेस्ट. 6 नंबर पे एक स्क्रब स्टेज बोल के भी लिखो. स्क्रब स्टेज. देखिए व्हाट आर द स्टेजेस इन हाइड्रार्च सक्सेशन. फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, सबमर्ज स्टेज,
submerged free floating stage, reed swamp stage, marsh meadow stage, scrub stage एंड मीसोफाइटिक फॉरेस्ट। स्क्रब स्टेज के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स मतलब प्लांट्स है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड स्टेम वाले हैं, वुडी प्लांट्स। यू कैन राइट हियर स्क्रब स्टेज एज वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स हैं, हार्ड स्टेम वाले प्लांट हैं। So this is all sequential है ना, sequential है। First I am saying phytoplankton will come, and second submerge, then submerge free floating, then reed swamp, then marsh meadow, then scrub stage, and finally mesophytic forest, mesophytic forest। ठीक है, बहुत लॉन्ग बैक गैप जो है बहुत पहले पूछा था, ये स्टेजेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनके ऊपर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछ सकते हैं, हाइड्रॉक्स सक्सेशन में पॉसिबिलिटी है। सो इसको हम कुछ ऐसा याद रखेंगे, स्टेजेस। पहले सुनो, पहले सुनो, पी फॉर पहले सुनो, पहले सुनो, समझो फिर, पहले सुनो समझो फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर, मस्त मार्क्स स्कोर। तो पहले सुनो समझो फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर। तो ऐसा कुछ याद कर लो ये सीक्वेंस। व्हाट इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सक्सेशन? सक्सेशन में क्या होता है, ऐसे जनरल कैरेक्टर्स क्या है? ड्यूरिंग सक्सेशन व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग सक्सेशन नंबर 1, ड्यूरिंग सक्सेशन बायोमास क्या होता है बोलो? बायोमास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? आप बोलो सोच के। इंक्रीज हो रहा है ना, पहले फाइटोप्लैंक्टन थे, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, मतलब क्या हो रहा है? बायोमास इंक्रीज हो रहा है। सॉइल क्वांटिटी क्या बोलते हैं भाई? सॉइल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सॉइल क्वांटिटी इंक्रीज। ह्यूमस क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, ह्यूमस क्वांटिटी इंक्रीज, ह्यूमस की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ह्यूमस की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और क्या हो रहा है? निश स्पेशलाइजेशन, निश स्पेशलाइजेशन आकर, निश स्पेशलाइजेशन आकर। पहले पूरे फाइटोप्लैंक्टोनिस्ट थे, देखो पहले पूरे फाइटोप्लैंक्टोनिस्ट थे, हाँ, लेकिन आगे आगे चलते चलते है ना, कुछ ट्रीज बन गए, कुछ श्रब्स बन गए, कुछ हर्ब्स बन गए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट बन गए, कुछ फ्रूट यील्डिंग प्लांट बन गए। सबका अलग अलग प्रोफेशन, निश, अलग अलग प्रोफेशन, निश स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस या ऑकर्स ड्यूरिंग सक्सेशन बोल सकते हैं। अब यहां पे सक्सेशन में सबसे पहला कम्युनिटी कौन है? फाइटो। हु इज द फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपिंग इन हाइड्रॉक्स सक्सेशन? हाइड्रॉक्स सक्सेशन में सबसे पहले कौन आए? हाँ, ऑर्गेनिजम्स में हाइड्रॉक्स सक्सेशन में आप बोलेंगे सबसे पहले वाटर आया बोलेंगे, नहीं, ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले कौन है? सो दैट इज कॉल्ड पायोनियर स्पीशीज। व्हाट इज मीन बाय पायोनियर स्पीशीज? Pioneer species means the species which takes its appearance, species which takes its appearance, species which take its appearance on a totally barren area, barren area for the first time, for the first time is called pioneer species.
पायोनियर स्पीशीज बोलेंगे, फर्स्ट टाइम आना, जो भी आएगा पायोनियर होएगा वो। व्हाट इज द पायोनियर स्पीशीज ऑफ हाइड्रार्क सक्सेशन? इन हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क सक्सेशन में पायोनियर स्पीशीज कौन है? Phytoplanktons are pioneer species. In case of hydrar succession, phytoplankton are the pioneer species. And in case of xerarch succession, in a xerarch succession, बताइए, in a xerarch succession, crustose lichen, crustose lichen act as pioneer species. ऑफ कोर्स अगर क्रुस्टोस नहीं रहा तो लाइकेन जरूर ले सकते हैं। अगर ऑप्शन में भी लाइकेन में भी 2-3 टाइप देके पूछा तो क्रुस्टोस का मतलब है, अब ये रॉक है समझो, अब ये रॉक के ऊपर ग्रो होने वाले फ्लैट लाइकेन्स, अगर लाइकेन एकदम फ्लैट है, ग्रोइंग एज ए थिन कवर ऑन द रॉक सरफेस, then those are called crustose lichen. Crustose lichen are the first organism growing on the rock surface. रॉक के ऊपर ग्रो होने वाले कौन है? फर्स्ट क्रुस्टोस लाइकेन। जैसे वाटर में सबसे पहले कौन ग्रो हुए? फाइटोप्लैंक्टन। सो हु विल कम फर्स्ट? हु विल कम फर्स्ट? पायोनियर स्पीशीज। जैसे क्लासरूम है, ये क्लासरूम में फर्स्ट कौन है आज? तो वो है पायोनियर स्पीशीज। उसके बाद कौन है? सेकंड कौन है? थर्ड कौन है? फोर्थ कौन है? फिफ्थ कौन है? सिक्स कौन है? दोज आर ऑल कॉल्ड सीरल स्टेजेस। सीरल स्टेजेस। लास्ट में कौन है लेट करके? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लाइक लास्ट में कौन है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो 3 definition should be known every student: pioneer species, सीरल स्टेजेस, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। याद रखो पायोनियर स्पीशीज का मतलब क्या है? फर्स्ट स्पीशीज अभी अभी लिखे हम। पायोनियर का मतलब, सीरल स्टेजेस का मतलब क्या है? सेवेरल इंटरमीडिएट, सेवेरल इंटरमीडिएट स्टेजेस। जो कई इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं बीच में, सेवेरल इंटरमीडिएट स्टेजेस आफ्टर पायोनियर स्पीशीज, there will be a number of intermediate stages, just like क्या क्या पढ़े हम अभी? हाइड्रार सक्सेशन के बाद, हाइड्रार में पहले फाइटोप्लैंक्टन आया, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, स्क्रब, ये सब स्टेज को क्या बोले हम? सीरल। सीरल बोले उनको। समझ में आया? एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? फाइनल कम्युनिटी है। फाइनल कम्युनिटी है। हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनल कम्युनिटी? इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इट विल बी इन इक्विलिब्रियम in its given environment. Equilibrium in its given environment. In given environment. क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे उसको। अभी क्लाइमैक्स कम्युनिटी तो नहीं पहुंचे हम लोग, शुरुआत हो गई अर्थ के ऊपर, पायोनियर स्पीशीज आए, हम सीरल स्टेजेस में आते हैं। बिकॉज देर आर सो मेनी चेंजेस ऑकरिंग एवरीवेयर, दैट मीन्स वी आर इन सीरल स्टेजेस। जिस दिन क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। Climax community will be in equilibrium with its given environment. And this whole process of succession is taking how much time? वो भी लिखो, time required. How much time is required for succession? लिखो, time required is several hundred to 1000 years. several hundred to 1000 years भी लग सकते हैं।
1000 years, several hundred to 1000 years. ये भी होता है. And next, we are going to see one more type of succession. What is the type of succession? Zerarch. Zerarch succession. Succession taking place on totally dry lands, dry habitats, deserts. They are called Zerarch succession. In Zerarch succession, who will appear first? Crustose lichen appear first. Zerarch succession में कौन बनते हैं सबसे पहले? Crustose lichen develop and Crustose lichen replaced by Foliose lichen. Foliose lichen replaced by mosses. Mosses replaced by herbs, ferns, and ferns replaced by annual herbs. छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे herbs, फिर shrubs बनेंगे, फिर trees बनेंगे, and finally mesophytic forest. Climax community हमेशा same, mesophytic forest. Whether it may be hierarch or Zerarch succession, climax community is same, mesophytic forest. First crustose lichen develop, then foliose lichen. Crustose का मतलब है thin flat structure attached to the rock surface. Thin flat. ये कैसा है? Thin है, flat है, और ये leaf की तरह है. Foliose is looking like leaf like. Mosses are growing just like dense mats. Mats है ना, मैट्स की तरह ग्रो होते हैं. फर्न मतलब छोटे छोटे प्लांट दिखना शुरू हो गए. यहाँ पर कुछ प्लांट्स अब एनुअल हर्ब हो गए, 1 ईयर प्लांट हो गए. उसके बाद श्रब्स हो गए, कुछ ट्रीज बन गए. सपोज इफ यू विजिट सम डेजर्ट्स टुडे, अगर आज हम अगर कोई डेजर्ट को जाके देख के आते हैं तो 1000 साल के बाद भी वो डेजर्ट ही रहेगा क्या? नहीं. 1000 साल के बाद अगर वो प्लेस को सेम जगह जाएंगे आप, तो वहां पे फॉरेस्ट मिलेगा आपको, मेसोफाइटिक फॉरेस्ट. सक्सेशन इज गोइंग ऑन. अगर आप एक रिवर आज देखकर आते हैं, सो 1000 ईयर के बाद वो रिवर ही रहेगी? नहीं रहेगी. वो रिवर में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. क्रूज वहां पे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज चलेगा, फिर उसके बाद सबमर्ज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग. ऐसे ही डेजर्ट्स में हो रहा है. ड्राई लैंड्स, सक्सेशन टेकिंग प्लेस ऑन ड्राई लैंड्स आर कॉल्ड ज़रार सक्सेशन. समझे? आज डेजर्ट होंगे वो, लेकिन वो कभी ना कभी जो है फॉरेस्ट बनने वाले हैं. मीसोफाइटिक फॉरेस्ट बनने वाले हो, डेफिनेटली बनेंगे. सेवरल 100 to 1000 ईयर्स लगेंगे. ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज के बारे में, क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में, सीरल स्टेजेस भी पूछ सकते हैं. ओके, ये तो प्लांट्स की बात हो गई. वेदर सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स आल्सो? यस, डेफिनेटली. इफ सक्सेशन इज ऑकरिंग इन प्लांट्स, तो एनिमल्स भी बदलते रहेंगे. प्लांट को कौन खा रहे हैं? एनिमल्स खा रहे हैं. तो एनिमल हर्बियोर्स खा रहे हैं. हर्बियोर चेंज होंगे तो कार्नियोर चेंज होंगे. प्लांट चेंज होंगे, हर्बियोर चेंज होंगे, कार्नियोर चेंज होंगे. सक्सेशन इन एनिमल इज आल्सो, सक्सेशन इन एनिमल्स is also occurring parallel. Succession in animals also occurring parallel with plants. मतलब प्लांट्स में जैसे हो रहा है सक्सेशन, एनिमल में भी वैसे ही हो रहा है सक्सेशन. पैरेलल प्रोसेस है बोल रहा है. दोनों भी पैरेलल चल रहे हैं. सक्सेशन इन एनिमल, सक्सेशन इन प्लांट्स. ठीक है. नाउ वन मोर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिमेन, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोले सो.
Nutrient cycling is also called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle. ठीक है, अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने टाइप के हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 2 टाइप के हैं. गैसियस साइकिल बोल के एक टाइप है. Gaseous cycle is one type of biogeochemical cycle, and one more is sedimentary cycle. Sedimentary cycle. What is the difference between gaseous cycle and sedimentary cycle? Gaseous cycle और sedimentary cycle difference है. Main difference क्या है दोनों में बोल तो रिजर्वायर दोनों का रिजर्वायर अलग अलग है. रिजर्वायर गैसियस का रिजर्वायर होता है एटमॉस्फेयर. गैसियस साइकिल का रिजर्वायर क्या है? एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में होता है. गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. एंड सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर कहां पर है बोल तो अर्थ क्रस्ट है. अर्थ क्रस्ट is the reservoir of sedimentary cycle. Phosphorus cycle for example. फास्फोरस कहां मिलेगा आपको? अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, रॉक्स में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा. बट यू विल नॉट गेट फास्फोरस इन एयर. एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट हैविंग फास्फोरस. एटमॉस्फेरिक एयर इज हैविंग कार्बन. एयर में कार्बन मिलेगा आपको. तो गैसियस साइकिल कितने हैं यहां पर एग्जाम्पल? गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल कौन से हैं? देखो, गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल है. सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल मिलेंगे आपको फास्फोरस साइकिल and sulfur cycle. Okay, put a star mark on the sulfur cycle. सल्फर साइकिल पे स्टार मार्क लगा देंगे because sulfur cycle can be of both the type, gaseous as well as sedimentary, but more sedimentary. Sulfur cycle of course ज्यादा sedimentary cycle ही है, but sometime it is a gaseous also. You know, all sulfur can also be present as sulfur dioxide. gas में भी हो सकता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम होता है. ज्यादातर सल्फर कहां पे है? रॉक्स में है, अर्थ क्रस्ट में है. सल्फर रॉक्स हैं, फास्फोरस के रॉक्स हैं. समटाइम सल्फर आल्सो प्रेजेंट एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन पॉल्यूटेड एयर. समझे? तो इसलिए मैं लिख रहा हूं सल्फर साइकिल को. ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, नेम द साइकिल विच इज बोथ गैसियस एंड सेडिमेंट्री. both gaseous and sedimentary बोल तो sulfur cycle बोलना, but mostly it is sedimentary cycle. And here one important definition, what is mean by standing crop और standing state. कल भी पढ़े थे ना, standing state दोनों में डिफरेंस बताइए. standing crop क्या है? crop का मतलब क्या है? standing crop total amount of biomass present in a given trophic level. ट्रॉफिक लेवल एक स्पीशीज के लिए हो सकता है, या ट्रॉफिक लेवल इज नॉट फिक्स फॉर ए स्पीशीज. ट्रॉफिक लेवल इज नॉट फिट फॉर ए स्पीशीज. ठीक है? सो ऑल ह्यूमन स्पीशीज कम अंडर वन ट्रॉफिक लेवल? नो. इसका मतलब क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास
बायोमास अवेलेबल इन ए गिवन ट्रॉफिक लेवल। T1 में कितना बायोमास है, 100 kg है या उससे ज्यादा है। T2 में बायोमास कितना है, T3 में बायोमास कितना है। बायोमास इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये इनऑर्गेनिक है। स्टैंडिंग स्टेट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल। सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितना है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इसको पढ़ेंगे। ओके और क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके विल स्टॉप हियर। एंड वन मोर थिंग, यस्टरडे एनवायरमेंटल इश्यूज की क्लास कंप्लीट हुई है, आप नहीं देखे होंगे, उसको देखना है क्लास। सॉलिड वेस्ट तक पढ़ाया हूं मैं। नहीं उसके बाद लिया फिर एक बार मैं, अभी बोलूंगा सर भी बता देंगे आपको।